Good morning, children. This is Suchita ma'am, and we are going to do our fourth part of the third lesson of BA, that is planning. And today we are going to look at the elements of planning, right? So, if you have notebooks, you can take the notes, or I will try to send you the notes through WhatsApp. Okay. So, we are doing our elements of planning, lesson 3, part 4. We all know that planning is an intellectual process, and we have also said that the main objective is always divided into subsidiary objective, and for each subsidiary objective or for each activity programs are made, and all those are the elements of planning, right? So for example, if we want to make the company budget, so first of all, budget of each department is to be made. So it will be called a subsidiary plan. If the unit is having 7 departments, so they will have 7 departmental budgets. Okay, so those will be the 7 subsidiary plans, and by taking in all departmental budgets, a final master budget is made after discussions. Those discussions will be between whom? Because the departmental heads who are at the middle level, they will make the departmental budgets, and the owners or the founders or the board of directors who are at the top level, they will sanction it. So they will have a meeting, they will have discussions, and whatever changes, if at all they need to be made, they will make it, and accordingly they will sanction it. So this is just one example of element of planning, because budget is one of the elements of planning. Okay, so that's why we have taken it in the introduction. Now we are going to look at the elements of planning in a chronological order. Chronological मतलब logical. Logically सबसे पहले तो किस चीज़ की बात होती है, क्या सेट करते हैं हम? Objectives. The number one element of planning is objective. अभी objective is the purpose of every business, and that is to मेन पर्पस कौन सा है, तो वाई द बिजनेस इज सेट टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव. द पर्पस ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. So objectives must not be over ambitious. Here the word is used in plural because we are talking about all subsidiary objectives. तो ये जो objectives होंगे वो main objective के अचीव करने में हेल्पफुल होंगे, ऐसे ही सेट होते हैं, लेकिन वो भी कैसे होने चाहिए? It should also be pragmatic, right? So we are going to go ahead. So we have seen कि first element of planning is objectives, and they should be pragmatic, right? So next will be strategy. We have already talked about strategy yesterday when we talked about Divya Bhaskar, कि when they wanted to enter the market where two very successful competitors were already there, like the Sandesh and the Gujarat Samachar. So they had a very good strategy. Strategy is that winning scheme जिसको कि word है contrivance या scheme. तो contrivance और scheme used to achieve pre-decided objective is called strategy. It is the winning technique to face the competition and to survive when the external factors are adverse. Right now the external factors are not good because of the coronavirus infection. The economy is facing a huge problem. Everybody has money crunch. So now proper strategies businesses will have to set. तो स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज यूज्ड इन वॉर और स्पोर्ट्स. ये वर्ड आया कहाँ से है? वॉर में दुश्मन पे विजय पाने के लिए स्ट्रैटेजी रखनी पड़ती है, स्पोर्ट्स में भी रखनी पड़ती है, वैसे बिजनेस में भी स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है. इफ़ यू लुक एट जियो, यू विल अगेन अंडरस्टैंड द वर्ड स्ट्रैटेजी वेरी वेल. व्हेन जियो एंटर्ड द मार्केट वेयर वोडाफोन, एयरटेल, दे वर द बिग प्लेयर्स, international players like Vodafone was also there. So even then Jio could get their share of market. So what was their strategy? If you remember, for the first 3 months they gave the network free, right? So that was the all youngsters went to Jio. Everybody almost went to Jio, and then when they had got that loyalty from so many people, then they started charging them. But that was a short term strategy. But their most important strategy was that they
change the game plan from 3G to 4G. तो 4G लेके आए, जो टेक्निकली जो एफिशिएंसी वो लेके आए, वो सबसे अच्छी बात उनकी थी. तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी उनकी कैसी रही, बहुत ही सक्सेसफुल रही है. ठीक है, तो दिस इज हाउ द स्ट्रैटेजी वर्क्स. स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज केप्ट कॉन्फिडेंशियल फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, एन आइडियल स्ट्रैटेजी गारंटीज सक्सेस. इसमें सीक्रेट रखना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, तो ही क्या मिलता है, सक्सेस मिलता है. लेकिन स्ट्रैटेजी आइडियल होनी चाहिए, विनिंग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए. अभी स्ट्रैटेजी जो होती है वो भी आगे जाके क्या बन जाती है, पॉलिसी बन जाती है. कि जियो ने अगर सोचा है कि पहले 3 महीने हम फ्री देंगे, तो इट इज़ देयर शॉर्ट टर्म पॉलिसी ओनली, है ना. और 4G को हम लाएंगे तो वो भी उनकी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है. तो पॉलिसी ही बन जाती है. तो स्ट्रैटेजी इज वन पार्ट ऑफ पॉलिसी. दूसरी भी पॉलिसी बहुत सारी होती है. जैसे कि अगर मेरे कंपनी में ड्रेस कोड है तो वो भी मेरी पॉलिसी है. मेरे कंपनी का क्या क्या टाइम पीरियड है, सुबह 9 से 5, तो वो भी मेरी एक पॉलिसी है. ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज हो सकती है. तो व्हाट आर पॉलिसीज बेसिकली. पॉलिसी क्या होती है, दे आर डिसीजंस एंड स्ट्रैटेजीज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. जो भी डिसीजंस मैनेजमेंट लेती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, वो सब क्या हो जाते हैं, उनके पॉलिसीज हो जाते हैं. स्ट्रैटेजी भी उसमें शामिल होती है. लेकिन पॉलिसी की मेन बात क्या है, पॉलिसी क्रिएट्स अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ बिजनेस. लाइक आई सेड कि एवरी एयरलाइन कंपनी हैज़ अ डिफरेंट ड्रेस कोड, तो दैट क्रिएट्स देयर डिस्टिंक्ट इमेज. इस तरीके से पॉलिसी को हम आगे देखेंगे. तो policy creates a distinct image of business. Policy tells about efficiency and working style of business. जियो पर से ये बात तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि वो जो 4G लाए थे, उसके बाद जो efficiency उनकी थी, उसके वजह से दूसरों को भी फिर 4G लाना पड़ा. तो ये efficiency और working style business के बताता है. Policy should also be pragmatic. वो भी कैसा होना चाहिए, realistic होना चाहिए. Policy of sale of goods on credit basis. Suppose you're a startup company and you want to give your products to retailers for sale. तो रिटेलर्स एकदम से तुमको क्या देंगे, पैसे नहीं देंगे. तो तुमको शुरुआत में उनको जो भी तुम्हारा सप्लाई है वो क्रेडिट बेसिस पे देना पड़ सकता है. तो कितने महीने के लिए क्रेडिट बेसिस पे देना है ना, वो तुम्हारी एक पॉलिसी हो सकती है. सो दिस इज व्हाट इज पॉलिसी. तो हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव सीन अप टिल नाउ. वी हैव सीन objectives, we have seen first one is objective, second one is strategy, and third one is policy. Okay, now we are coming to method. objective set कर लिया, winning strategy करके market में भी आ गए, फिर बहुत सारी टाइम से लेके बाकी सारी भी पॉलिसी इंक्लूडिंग द स्ट्रैटेजी भी एक पॉलिसी बन जाएगी. पॉलिसीज भी बना ले. अभी क्या करना है, काम करने के लिए, एक्टिविटी कैरी करने के लिए एक मेथड सेट करना पड़ेगा कि मेरा काम कैसे चलेगा. तो वो जो मेथड होता है या प्रोसीजर होता है, इट रिफर्स टू अ वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कैरिंग आउट एक्टिविटीज, हाउ यू आर गोइंग टू डू योर वर्क. It refers to the best way of doing things. If you remember, we have talked about it in management. So that best way of doing things for achieving predetermined objective, वो तुमको फाइंड आउट करना है. फिर भले उसके लिए तुम टाइम स्टडी करो, मोशन स्टडी करो, बट फाइंड आउट दैट बेस्ट वे. तो जैसे एक एग्जांपल दे रहे कि भाई तुमको अगर एनुअल सेल के टारगेट को कंप्लीट करना है, तो पहले क्वार्टर सेल के टारगेट को तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना. तो क्वार्टरली सेल टारगेट्स आर अचीव्ड टू फुलफिल द एनुअल सेल टारगेट्स. इस तरीके से भी एक एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी योर मेथड्स. तो यहाँ पे बता रहे कि मेथड्स ऑफ पेमेंट भी तुम अलग अलग रख सकते हो. जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हुए हैं. मेथड्स ऑफ पेमेंट्स कैन बी कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक्स. तो ये तुम अलग अलग मेथड्स भी रख सकते हो. तो ये सब चीज़ें मेथड्स में जाएंगे कि कैसे तुम्हारा काम पेमेंट का होगा. उसके बारे में देखो, हर एक्टिविटी का ये चीज़ें होंगी. हर एक एक्टिविटी के लिए एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग काम करेंगे. नाउ वी गोइंग टू लुक एट द नेक्स्ट एलिमेंट. मेथड के बाद क्या होगा, नेक्स्ट विल बी रूल्स. रूल्स का 2 मार्क्स में आने का बहुत चांसेस होता है. तो व्हाट आर रूल्स, दैट इज द 5th एलिमेंट ऑफ प्लानिंग. रूल्स एंश्योर डिसिप्लिन अमंग द एम्प्लॉयज. रूल्स होने बहुत ही ज़रूरी है कंपनी में. रूल्स ऑल्सो ब्रिंग क्लैरिटी अबाउट प्रोसीजर. कैसे काम करना है वो रूल्स से समझ में आता है. रूल्स मेक सुपरविजन ईजी. अगर मैं एक सुपरवाइज़र हूँ और मेरी कंपनी में कोई रूल्स ही नहीं है, तो मुझे सुपरविजन करने में बहुत ही प्रॉब्लम आएगा. क्लास में अगर कोई रूल नहीं होगा
तो क्या होगा, तो भी सुपरविजन या सब चीज़ में क्या आता है, प्रॉब्लम होता है। एग्जाम के टाइम पे अगर ये रूल नहीं होगा कि बुक्स लेके नहीं बैठना है, तो क्या होगा, फिर सुपरविजन का ही कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसे कई सारे, जैसे एग्जाम के टाइम पे बातें नहीं करनी है, ये सब चीज़ें होती है। तो रूल्स में से क्या होता है, सुपरविजन इजी हो जाता है। वैसे कंपनी में भी, बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। रूल्स हेल्प इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी में कैसे कैसे रूल्स हो सकते हैं, नो स्मोकिंग, नो मोबाइल्स एट वर्क प्लेस, ऐसे और भी कितने सारे भी रूल्स हो सकते हैं कि कोई सेफ्टी मेजर के लिए पहनना, हेलमेट पहनना ज़रूरी है, जो भी होगे वो सब अलग अलग तरह के क्या हो सकते हैं, रूल्स कैन बी देयर। बट इम्पोर्टेंस ऑफ रूल बहुत है, क्योंकि दैट इज़ द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ प्लानिंग एंड इट एंश्योर्स discipline. Rules ensure discipline among the employees. It makes the supervision easy. It also brings clarity about the procedure कि भाई काम कैसे करना है, कि मुझे क्लियर है कि इस तरह से मुझे करना है, मुझे ये ड्रेस कोड पहनना है, ये मेरे टाइम है, और ये मेरे को इस तरीके से मोबाइल यूज़ नहीं करना है। ये सब चीज़ें पहले से क्लियर हो जाती है। Now next thing is budget. The sixth element of planning is budget. बजट ही पैसे के बारे में होता है, तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टूल टू कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटीज़। मोस्ट IMP ये है तुम्हारा MCQ। बजट क्या है, इम्पॉर्टेंट टूल है ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोल बजट पर से आता है, क्योंकि पता है कि ये एक्टिविटी में इतना पैसा खर्च करना है, तो उससे ज़्यादा तो अगर खर्च करने लगे तो गलत हो रहा है सब कुछ, तो उसके ऊपर कंट्रोल करना इजी हो जाता है, क्योंकि पहले से ही प्लानिंग में बताया गया है कि ये एक्टिविटी में इतना पैसा अलाउड है, सैंक्शन किया गया है बजट। तो दैट्स वाई बजट इज़ ए इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टूल टू कंट्रोल बिजनेस एक्टिविटीज़ फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। डिपार्टमेंटल बजट्स एंड स्पेसिफिक एक्टिविटी रिलेटेड बजट्स हेल्प टू मैनेज इट प्रॉपरली एंड इफिशिएंटली। तो इस तरीके से एक एक एक्टिविटी का जब बजट बन जाता है, तो बहुत ही इफिशिएंटली ये पूरे डिपार्टमेंट का और पूरे यूनिट का काम चलता है। अभी हम बजट के एग्जाम्पल्स लेंगे कि कौन कौन से टाइप के बजट्स बनते हैं। एक तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, जो तुम कैपिटल लगा रहे हो बिजनेस में, उसको तुम कैसे यूज़ करोगे, उसका तुम एक्सपेंडिचर कैसे करोगे, कितना एसेट में जाएगा, कितना तुम कैश फ्लो में रखोगे, किस तरीके से तुम मशीनरी में कितना डालोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में जाएगी। कैश बजट जो तुम्हारा है, तो वो कैश फ्लो तुम कैसे मेंटेन करोगे, उसका कैश बजट होगा। कितना कैश बजट में तुम पैसा अलॉट करोगे, वो कैश बजट में बताया जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में कितना पैसा तुम खर्च करना चाहते हो, उसका भी एक बजट बनेगा। उसमें इलेक्ट्रिसिटी से लेके रॉ मटेरियल्स, ये सब चीज़ों का उसमें क्या होगा, कॉस्ट में जाता है। जो तुम्हारा एक प्रोडक्ट बनने में जो जो चीज़ें यूज़ होते हैं, वो सब कुछ चला जाता है इन प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो वो तुमको एक लिमिट रखना पड़ेगा ना, कि इससे आगे मुझे जाना नहीं है, तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में यू विल गिव दैट लिमिट। तो बजट इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। उसमें पूरा क्या होता है, आंकड़ेवारी होती है कि कितना पैसा किस चीज़ में डालना है। सेल्स बजट, कि सेल्स को बढ़ाने के लिए तुम्हारा क्या बजट होगा, ये अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, बजट्स होते हैं। सेवेंथ एलिमेंट इज प्रोग्राम। नाउ द स्टेप वाइज मेथड ऑफ डूइंग द एक्टिविटी इज कॉल्ड द प्रोग्राम। तुमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, स्ट्रैटेजी बना ली, पॉलिसी बना ली, तुमने रूल्स बना लिए, तुमने उसके बाद तुमने बजट भी बना लिया, और फिर अब आता है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में जब तुमने ठीक से एक मेथड भी सेट कर ली है कि क्रोनोलॉजिकल वे से कैसे, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डू द थिंग्स, ये भी हो गया। लेकिन जब एक्चुअल काम करने का आएगा, तो स्टेप वाइज मेथड ऑफ डूइंग एन एक्टिविटी इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। एक एक्टिविटी को कैसे स्टेप वाइज मेथड से करेंगे, उसको प्रोग्राम बोला जाता है। उसमें एक सीक्वेंस होता है ना, तो वो सीक्वेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज डिसाइड होता है। एज वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, प्रॉब्लम्स डू नॉट अराइज। तो स्टेप्स बताए गए, नंबर 1 क्या, नंबर 2 क्या, ये सीक्वेंस बताया गया है, तो क्या होता है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होता और वो बेस्ट तरीके से काम होता है। लेकिन उसके लिए पहले क्या सेट करने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं। तो जब तुम स्टैंडर्ड सेट करते हो कि भाई इसी तरीके से काम करना है, तो क्या होता है, उससे अगर डेविएट हो गया, उससे अगर कुछ अलग तरीके से काम हो गया, तो यू कैन करेक्ट इट। ठीक है, तो इसीलिए ये भी प्रोग्राम इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। और इस तरीके से क्या होता है,
अच्छे से काम चलता है। स्टेप बाय सीक्वेंस बताता है प्रोग्राम तुमको कि कैसे काम करना है, और उसके लिए तुमको क्या सेट करने पड़ते हैं, स्टैंडर्ड। एक तरीका, एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है कि इसी तरीके से काम चलेगा। जैसे मैंने अगर बोला कि भाई ये ड्राइंग करना है और ये ड्राइंग तुमको ऐसे शुरुआत करनी है और इस तरीके से करना है, लेकिन मेरा स्टैंडर्ड क्या है कि A4 पेज में ही वो ड्राइंग करना है, तो अगर किसी ने उससे दूसरा साइज का पेज ले लिया तो स्टैंडर्ड से हट गया, तो फिर अगर मुझे करेक्शन देना पड़ेगा कि ये नहीं चलेगा। डेविएशन जहाँ पे आ गया, अगर चेंज आ गया स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, करेक्शन करना पड़ता है। तो एक प्रोग्राम में पहले स्टैंडर्ड सेट करो और फिर उसके सीक्वेंस भी सेट करो, तो वो होता है तुम्हारा प्रोग्राम कि काम कैसे करना है, टास्क को कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। नाउ आई एम फर्स्ट टाइम आई एम गिविंग यू होमवर्क, राइट। तो ये होमवर्क में ये क्वेश्चन तुमको शांति से पढ़ना है। अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, तुम लोग शांति से पढ़ोगे, उसको तुम नोटबुक में लिख लोगे। और अभी जो हमने एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग किए हैं, उसमें से कौन से 2 एलिमेंट्स है ये तो मैंने बता दिया कि 2 एलिमेंट्स तुमको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो योर होमवर्क इज टू फाइंड आउट द 2 एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग given in the following case study and you have to name them, क्योंकि from this case study I come to know कि these 2 elements of planning have been mentioned here. That is your homework. And if you go to the students zone, you will get an option of submitting your homework, so you can take a photograph and submit it to me so that I can also check it. Okay, so we are going to stop here now, and I hope that you will be successful in doing this homework properly. If you have listened properly, you can definitely do it. All the best. Okay, thank you.